Good afternoon to you all. Welcome to ISF College of Pharmacy YouTube channel. Today we are having a very specific session on career guidance in pharmacy, particularly after diploma in pharmacy, which is a 2-year course. Career guidance is a comprehensive development program which is designed to assist individuals in making and implementing informed educational and occupational choices. Hence, the career decision and its results affects their social, financial, and emotional well-being throughout. It is most important tool that we can use to develop our education system. And the only way our colleges can produce the most productive academicians, businessmen, entrepreneurs, startups, as well as many more job professionals, which helps the learners to make their mind early through. And it's believed that if you are at good college, good place, you can develop your plans to reach educational and occupational goals. Today, I welcome our today's expert and guest, Honorable Professor Dr. G.D. Gupta sir, Director cum Principal, ISF College of Pharmacy, Moga, Punjab, for this session. I welcome you, sir. Good afternoon, sir. And without So, yes. over So, to you. thank you very much, Professor Koseji, for nice introduction. And this, and I hope that or the requirement of this session. So, from my side, I will try my best to give the some of the information which are related to diploma in pharmacy. And as we know that at that time, most of the students and parents, they are searching the admission after the 10+2. And as you know that number of the question in the parents before to take the admission in any college or any university. So I hope that we can discuss each and everything with the including of the scope of the diploma in pharmacy. As you know that recently Pharmacy Council of India, he given one of the ER 2020. This is the regulation of diploma in pharmacy, and this draft launched on the web portal. And he also invited the suggestion for the diploma education to give the suggestion up to the 10th of the August. So I hope that most of the professionals, they have given their good suggestion for the strengthen of the diploma in pharmacy in India. So as we know that Pharmacy Council of India, this council is doing very excellent job role, and always updating of the curriculum, rules and regulation which are required from time to time, so that we can communicate to the person is the also. And this interactive session, the aim that because most of the person, they are not direct related to the council, so this types of the session is the most useful to each and everybody. I just come to the one by one point. एक सिंपल भाषा में आपको बता दूंगा, हिंदी एंड इंग्लिश में. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो ईयर 2020 है, दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द टूडेज इन इंडिया, जहां पर रूरल एरिया, विलेज एरिया, अर्बन एरिया, जहां पर एक फार्मासिस्ट की बहुत 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 रिक्वायरमेंट है. बिकॉज जब हम मेडिसिन तो ले लेते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग करना हमें कई बार नहीं आता है, चाहे वो स्टोरेज कंडीशन हो, चाहे वो हमारी डोज को लेने का कंडीशन हो, चाहे रिपीटेशन हो. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं. बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारी कंट्री है, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल्स, जो रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ सकते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, बट द लेवलिंग ऑन द मोस्ट ऑफ दी हमारे जितने भी मेडिसिन है वो इंग्लिश होती है. तो इन सारी चीज़ों को समझाने के लिए एक डी फार्मा बहुत अच्छा रोल कर सकता है. इसके लिए जो हमारा प्रोफेशन है, जिसको हम प्रिस्क्रिप्शन के जोड़ करके कहें कि हाउ टू काउंसिल द पेशेंट विद द रिलेटेड टू द प्रिस्क्रिप्शन, तो इसके लिए बहुत जोर दिया गया है. कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जो जनरली हमसे पूछे जाते हैं, या
एक अमूमन फोन कॉल पर बातचीत में होते हैं कि ये तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि 2 साल का कोर्स है, और जो फोन कॉल आते हैं उसके संदर्भ में बता दूं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी कोर्स करेस्पॉन्डेंस नहीं है, कोई भी कोर्स पार्ट टाइम नहीं है। ऑल कोर्सेज दे आर प्योरली रेगुलर, आइदर डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, फार्म डी पीवी, दे ऑल कोर्सेज जितने भी हैं वो सभी रेगुलर मोड पर हैं, बिकॉज देयर इज द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को भ्रमित नहीं होना चाहिए। 2 साल का रेगुलर कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, ईयरली प्रोग्राम है, साल भर में एक बार इसका एग्जाम होना है। अभी नए रेगुलेशन का जो ड्राफ्ट है उसमें कोशिश की गई है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल को भी उतना ही स्पेस दिया जाए, यानी कि प्रैक्टिकल के आवर्स को बढ़ाया गया है। इसमें फर्स्ट टाइम फार्मेसी काउंसिल इंट्रोड्यूस द ट्यूटोरियल, ताकि बच्चों से इंटरेक्ट सेशन बहुत अच्छे किए जाएं, और बच्चों के जो बी जिसको अपन स्लो लर्नर कहते हैं या जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, वो छोटी छोटी क्लासों के साथ टीचर के इंटरेक्टिव सेशन बने। सेकंड, इसमें अभी इंक्लूड किया गया है कि जो हमारा फील्ड वर्क है, यानी कि डायरेक्ट उस जगह ले जा करके बच्चे को दिखाया जाए कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिग्री और ड्यूरिंग द डिग्री हमें किस टाइप की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो होलसेल हो, या हमारे जो प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पर होते हैं वो काउंटर हो। इन सारी चीजों के लिए फील्ड वर्क को रखा गया है। इसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट को इंक्लूड किया गया है कि कुछ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं उन सभी चीजों का बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जाए। इसके अलावा ये जितने भी मैंने आपको बताया, फीस को लेकर के भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक्चुअली मैं पंजाब में काम कर रहा हूं, तो मैं यहाँ की पंजाब स्टेट की फीस के बारे में बता सकता हूँ कि डिप्लोमा इन फार्मेसी की फीस 29,150 है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, 29,150 रुपए साल भर की डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की फीस है, और इतनी ही फीस सेकंड ईयर की है। इसके अलावा सिर्फ एग्जामिनेशन फीस के अलावा मुझे लगता है और किसी भी तरह का फीस है नहीं है। अतः जिस जगह भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, फार्मेसी में आपका वेलकम है। आप उस कॉलेज के एफिलिएशन को, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो फैसिलिटीज है, क्योंकि डिग्री करने के बाद जब आप कहीं भी जॉब करने जाते हैं तो एक इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया होती है। उस कंडीशन में आपको इन सभी चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहली बार बच्चे की कॉम्पिटेंसी को देखते हुए, सब्जेक्टों के साथ साथ और कॉम्पिटेंसी पॉइंट को देखते हुए सब्जेक्टों की मैपिंग भी की गई है। इसका तात्पर्य है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल दे रहे हैं, बच्चे को क्या नॉलेज दे पा रहे हैं और बच्चा उसको क्या अंडरस्टैंड कर पा रहा है। इसके लिए जो हमारा डमी जिसको कहें कि हर इंस्टीट्यूट को रिटेल शॉप भी क्रिएट करने को कहा गया है। आगे चल के हमारे पास परफेक्ट ड्राफ्ट जो है वो रेगुलेशन में कन्वर्ट होकर के बहुत जल्दी आ जाएगा, ताकि बच्चे को एक्चुअल ट्रेनिंग मिल सके। अभी ये होता है बच्चा पढ़ने के बाद फिर से ट्रेनिंग पीरियड में जाता है। ट्रेनिंग जो ऑफिशियल ट्रेनिंग है 500 आवर्स की, वो तो करना ही करना है, क्योंकि जो डिप्लोमा कोर्स है उसको 3 चरण में बांटा गया है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर जो क्यूरिकुलम के तहत है, डिप्लोमा सेकंड ईयर जो भी क्यूरिकुलम के तहत है। आफ्टर दैट 500 आवर्स की उसको ट्रेनिंग करने के बाद वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की प्रक्रिया के लिए जा सकता है। तो इसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस जो हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली जो फोकस किए गए हैं कि बच्चों को किस तरह से ट्रेंड किया जाए टुवार्ड दी मेडिसिन। ये आज नहीं, हमारे देश की बहुत बड़ी नीड है। और कोविड-19 के बाद भारत सरकार, राज्य सरकारों को यह एहसास हुआ कि ना केवल डॉक्टर, ना केवल आप नर्सेज स्टाफ से काम नहीं चल सकता है। इस सारी प्रक्रिया में हेल्थ प्रोफेशन में फार्मासिस्ट की भूमिका ओनली रिटेल और होलसेल के अलावा
इनको डायरेक्ट हॉस्पिटल में कैसे कनेक्टिविटी दी जाए और कैसे इनकी सेवाओं को लिया जाए, इस पर भी जोर दिया गया है। इसी के तहत फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने क्यूरिकुलम को ऐसा डिजाइन किया है कि बच्चे को कोई भी तकलीफ ना हो और वो समाज की एज ए फार्मासिस्ट अच्छी सेवाएं दे सकें। जिस तरह से चाहे हमारे वैक्सीनेशन हो, भारत सरकार के द्वारा गांवों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उनमें भी फार्मासिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इसके लिए भी जरूरी है कि वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले। तो इन सारे बिंदुओं को इसको ध्यान में रख करके फार्मासिस्ट के कोर्स को किया गया है। हर राज्य में लगभग डिप्लोमा इन फार्मेसी कॉलेजेज हैं। तो किसी भी आपके लिए बहुत जरूरी है, कई बार बच्चा 4 साल का कोर्स डिग्री में नहीं ले पाता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का करके अगर उसको अपग्रेड करना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, तो बी फार्म में एज ए लीड एंट्रीज के द्वारा सेकेंड ईयर में उसको एडमिशन मिल जाता है। इसका भी प्रावधान रखा गया है और जो सीट्स हैं वो एडिशनल सीट इनटेक ऑफ द बी फार्म फर्स्ट ईयर की दी जाती हैं, नियर अबाउट 10%, ताकि डिप्लोमा के बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके और वो भी हायर एजुकेशन में जा सके। अगला क्वेश्चन होता है कि इसकी क्वालिफिकेशन एडमिशन की क्या है। तो आपको मैं बता दूं कि पीसीएम या पीसीबी इंग्लिश विषय के साथ जिस बच्चे ने 10+2 यानी कि हायर सेकेंडरी की है विद द पासिंग मार्क्स, वो इसमें एडमिशन ले सकता है। और साथ ही इसकी जो डिग्री है उसको कम से कम 40% मार्क्स लेना इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जरूरी है। सेकंड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन और 75+ के जो मार्क्स हैं उनकी जो भी डेफिनेशन उस बोर्ड की और जहां से वो एग्जाम दे रहा है यूनिवर्सिटी है उसके मुताबिक उसको मिलेगा। तो मैं समझता हूं कि डिप्लोमा जहां जहां है और जहां बच्चे जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं उनको तय करना अब जरूरी है कि वो हॉस्पिटल में सेवाएं देना चाहते हैं, वो अपना ओन एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों उनमें भी पोजीशन खूब सारी आज की डेट में अवेलेबल हैं, वहां पर पोजीशन निकल रही हैं। एम्बुलेंस 108 है, इसमें इतनी पोस्टें हैं कि लोगों की अवेलेबिलिटी नहीं है। जितने भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डेवलप हो रहे हैं उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं ड्यूरिंग द कोविड-19 बहुत सी जगह पर फार्मासिस्ट में पंजाब का भी बताता हूं इनवाइट की गई थी एप्लीकेशन, और उन सेंटरों पर सिर्फ पेशेंट को आपको काउंसलिंग करते हुए काम करना है। आज की डेट में वैक्सीनेशन एक पूरे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, यह चल रहा है। इसके लिए भारत सरकार को एक क्वालिफाइड ट्रेंड पर्सनों की आवश्यकता है जो नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स के साथ साथ हेल्प कर सकें और कहीं ना कहीं हेल्थ प्रोफेशन में अपनी भूमिका निभा सकें। सो आई होप दैट कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं और इस प्रोफेशन में आप एंट्री करना चाहते हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की, ये जरूरी नहीं है, देखिए कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं तो लोगों को ये लगने लगता है कि ये अपने कॉलेज में एडमिशन की बात कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि किसी भी इंस्टीट्यूट में सीटें फिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास 200 बच्चा आ जाए मैं 200 एडमिट कर लूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की जानकारी के लिए बात कर रहा हूं। मैं आईएसएफ कॉलेज ऑफ फार्मेसी की बात अकेली नहीं कर रहा हूं। जो मैंने फीस बताई है कि 29,150 पंजाब राज्य सरकार की फीस है, जिसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आता है, हर कॉलेज के पास होता है, सबको पता होना ये आवश्यक है क्योंकि आम आदमी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ये देश के सभी इंस्टीट्यूट की बात है। एडमिशन की क्वालिफिकेशन सभी की एक है, कोर्स की डेफिनेशन 2 ईयर सभी की एक है, क्यूरिकुलम सब्जेक्ट एक है, जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है वो सारी प्रक्रिया एक है, सिर्फ चेंज है तो वो है प्लेस। तो अब समय आ गया है
जो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उनका पर्पज भी यही है कि वर्क टुवर्ड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड वी नीड टू स्किल्ड अवर पीपल्स। कई बार ऐसा सुना जाता था कि वी आर प्रोड्यूसिंग क्वालिफाइड पर्सन, so now not need only the qualified person, now need qualified with skilled। अगर व्यक्ति स्किल्ड है तो वो इस प्रोफेशन में बहुत आगे चल सकता है और अच्छे प्रमोशन और अच्छे पदों को प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता है कि उसमें सही जगह और डेडिकेशन के साथ इस विषय को किया हो। तो मैं समझता हूं कि जो जो मुख्य बिंदु थे और जो जो मुख्य बातचीत थी मैंने आपके समक्ष रखी है कोसे जी, और आपके अगर मन में कोई भी ऐसा हो जिसको आप जानना चाहते हो तो मैं अवश्य उसको बताने की प्रयास करूंगा, क्योंकि सिर्फ इस का जो अभी जो पर्पस था, बहुत से लोग इससे यूट्यूब से ज्वाइन भी हैं, हो सकता वो भी क्वेश्चन पूछें। सिर्फ इतना पर्पस था कि हर बार एक फोन आता है और वो ये जरूर कहता है कि क्या ये कोर्स करस्पॉन्डेंस है, तो बड़ी तकलीफ होती है, ताकि आम आदमी तक ये पहुंच सके कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 ईयर का फुल्ली रेगुलर कोर्स है। इसमें कोई भी पार्ट टाइम, कोई भी नॉन अटेंडिंग जैसा कहीं भी कंसेप्ट नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा सकते हैं। तो आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप उन संस्थाओं का चयन करें जहां पर जो आप फीस दे रहे हैं उसके मुताबिक आपके बच्चे को शिक्षा मिल सके। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए, क्योंकि 12th के रिजल्ट आने वाले हैं। CBSE के रिजल्ट जो अवेटेड थे वो भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। आप जल्दी कहीं ना कहीं एडमिशन लेंगे, और जो ऑनलाइन काफी समय से हमारी कक्षाएं चल रही थी वो बहुत जल्दी अलग अलग राज्य ऑफलाइन क्लासेस को प्रारंभ करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा आप सभी से निवेदन है, आप चाहे गांव में रह रहे हो, चाहे शहर में रह रहे हो, आप जॉब में हो, आप जो भी कर रहे हो, भारत सरकार और राज्य सरकारों के नियमों का पालन करें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। कई बार ऐसा माना जाता है गर्मी पड़ रही है, वैक्सीन लगवाएंगे तो और ज्यादा शरीर के अंदर गर्मी हो जाएगी। इन तमाम तरह की गलत फहमियों से दूर रहें। फिर भी किसी को कोई वास्तविक मेडिकल प्रॉब्लम है तो उस मेडिकल प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए और उस सजेशन के मुताबिक आप वैक्सीनेशन को जरूर लें, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा पहले करना आवश्यक है। अगर अपने परिवार को, अपने राज्य को सुरक्षित और खुशहाल बनाना है तो हर एक इंडिविजुअल नागरिक को सुरक्षित होना पड़ेगा। अगर एक भी ऐसा होता है तो पूरे सिस्टम को होमवर्क करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं खामियाजा हमें, हमारे समाज को या परिवार को ही भुगतना पड़ता है। तो ये हमारी एक सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से कि इसको आप जरूर लें, और जो हेल्थ प्रोफेशन है उसका आप सपोर्ट करें। अच्छी शिक्षा के द्वारा ही आप अच्छा कार्य कर सकते हैं। ज्ञान से ही विज्ञान, एक बहुत बड़ा कि अक्षर ज्ञान होना बहुत छोटी चीज है, तत्व ज्ञान, और तत्व ज्ञान का मतलब होता है उसका मूल ज्ञान। एक डी फार्म कर लेना छोटा काम है, लेकिन डी फार्म की उपयोगिता और उसका वास्तविक रूप क्या है ये बहुत आवश्यक है। वो तभी होता है जब आप इस पूरी प्रक्रिया में तन्मयता से, पूरा डिवोटेड फॉर्मेट से काम करते हैं। बीइंग अ डायरेक्टर, में यहाँ डायरेक्टर बैठा हूं तो मेरा तात्पर्य नहीं कि सिर्फ मैं ज्ञान दूं, मेरा ये रोल है कि जो बच्चे एडमिटेड हैं हम उनको क्या सही शिक्षा दे पा रहे हैं, क्या हम उनको सही ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, उन्होंने फीस दी है क्या वो इसके हकदार नहीं है, 100% वो इसके हकदार है। तो हम सभी प्रोफेशनल, चाहे कोई डायरेक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे लेक्चरर हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, प्रोफेसर हो, यहाँ तक की जो मैनेजमेंट है, उन सभी को, जो बच्चे आपके यहाँ आए हुए हैं उन सभी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बेस्ट टू बेस्ट शिक्षा कैसे दी जाए।
और उनको सही ट्रेंड कैसे किया जाए, क्योंकि यही लोग तो जाकर के समाज में जाएंगे और समाज में जाकर के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि स्वस्थ समाज ही हमारा स्वस्थ भविष्य और प्रगतिशील भविष्य और प्रगतिशील देश है। बिना स्वास्थ्य के किसी भी चीज की कामना करना व्यर्थ है। कितना भी धन क्यों ना हो, अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो उसका कोई भी उपयोग नहीं है। सारा ज्ञान विज्ञान आप में ही निहित रह जाएगा। इसलिए पूर्ण स्वस्थ होना और इस स्वास्थ्य के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर के मान लेना कि मैं नागरिकों की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए पैदा हुआ हूं, मैंने उससे जुड़ी हुई डिग्री की है, तो मैं पूरी ईमानदारी और डेडिकेशन से अपना समय दूंगा, अपना योगदान दूंगा और जो मैंने शिक्षा ली है उसको समाज में कंट्रीब्यूट करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच कोसे जी, एंड आई होप दैट कि लोगों तक जो हम लोग बात करना चाहते थे वो वहां उन तक जरूर पहुंचेगी। अगर आपका कोई प्रश्न हो या आपके पास कोई आया हो तो मैं उसको जरूर लेना चाहूंगा और उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जी सर, सामान्यतः ये देखा जाता है सर कि जो बच्चे गरीब परिवार से होते हैं या रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, उनका एक आउटरीच होता है कि फार्मेसी में यदि उन्हें करियर बनाना है तो फीस की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो सर, फीस को लेके आपने बहुत ही प्रभावी तरीके से बताया कि ये फीस जो कि सरकार द्वारा प्रदत्त है। मेरा ये प्रश्न था कि सर, ऐसे कौन से सेक्टर है सरकारी क्षेत्र में, अमूमन ये देखा जाता है कि सरकारी नौकरी यदि होगी हाथ में तो एक प्रभावी भविष्य की परिकल्पना करते हैं वर्तमान में आज जो अभिभावक होते हैं सर। तो डी फार्म करने के पश्चात सरकारी उपक्रम में सर कौन कौन से नए रोजगार के साधन उपलब्ध हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कोशी जी आपने। तो अभी देखिए जो वर्तमान समय में है कि जितने भी हमारे डिप्लोमा के छात्र हैं और इन्होंने सही डिग्री और ट्रेनिंग ली है और ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जब हो जाते हैं, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो हमारा जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ना सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या आधुनिक अति आधुनिक किसी भी लेवल का हॉस्पिटल हो, इन सभी में फार्मासिस्ट की रेगुलर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। और पहले तो एक ही चीज होती थी जिसको कहते थे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो जहां पर हमारा चाहे रिकॉर्ड मेंटेन का हो, चाहे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का हो, या हम कहें कि जो हमारे रिटेल काउंटर इनसाइड दी हॉस्पिटल होते हैं गवर्नमेंट में उनका हो, या हम इनको ये कहते हैं जो हमारी एम्बुलेंस पर भी पहले फार्मासिस्ट का कोई जॉब रोल नहीं था, उस पर भी रेगुलर पोस्ट हो गई है। और जो स्टोर कीपर की पोस्ट है उसमें जितने भी बड़े बड़े हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनमें 3-3 से 5-5 जो है फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। इसके अलावा जो अभी वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चल रही हैं बहुत सारी, चाहे आपकी टीबी हो, चाहे प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो, चाहे बच्चों के लिए उपक्रम हो, ये गांवों के लिए भारत सरकार ने चलाए हुए, इन सभी में फार्मासिस्ट की पोजीशन को निहित किया गया है। तो इनमें भी बहुत से लोग जा रहे हैं। तो पेशेंट काउंसलिंग एक अब बहुत बड़ा टारगेट फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसमें भी मैं समझता हूं बहुत लोग जाने वाले हैं। अभी नया क्षेत्र है टेलीमेडिसिन, इसमें डॉक्टरों के साथ साथ फार्मासिस्ट की भी टीम काम कर रही है। NHRM जो अभी नया सेक्टर कोविड-19 के लिए डेवलप किया है, इसमें भी फार्मासिस्ट का जॉब रोल बहुत तेजी से मैं समझता हूं आने वाला है। फिर एक ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, इस पर भी फार्मासिस्ट की पोजीशंस को डेवलप किया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये है कि 2021 में या इसके बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी बहुत गति से काम कर रही है कि किस तरह से हम सभी के जॉब रोल को डिफाइन करें कि डी फार्म वाला कहां कहां प्लेस्ड हो सकता है और उसकी पोजीशन की डेफिनेशन है। इसी तरह से बी फार्म वाला कहां कहां हो सकता है उसकी पोजीशन है। फार्म डी का भी अभी हालिया में आपने देखा ही होगा कि फार्म डी प्रोग्राम के लिए काउंसिल ने एक नया जो आप कहें कि पास किया है गजट, जिसके द्वारा कि फार्मासिस्ट को एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद उसको बेनिफिट मिलेगा और वो डॉक्टर के साथ काम करके
प्रेस्क्रिप्शन पर वो अपना काम करेगा, तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ बहुत तेजी से जो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, चाहे आपका ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का सिस्टम है, चाहे आपका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, इन तमाम पैरामीटर पर फार्मासिस्ट की पोजीशनें आने वाली है। हाँ, मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि ये चूंकि ये प्रोफेशन ऐसा है जो सोसाइटी और सोशल वैल्यू से जुड़ा हुआ है, तो कई बार हमारे एक्सपेक्टेशन ऐसे होते हैं कि वो हम मीट आउट नहीं कर पाते। तो आप अपने एक्सपेक्टेशन रखें, मेहनत करें, लेंथ ऑफ सर्विस के बाद सभी तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। पहली कोई भी, हाँ अच्छा, अभी मैं कहता हूं कि प्लेसमेंट की मैं बात करता हूं, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि अगर मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति लाए, डिप्लोमा है या डिग्री है, जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसा अमूमन नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि फार्मेसी प्रोफेशन की जॉब अपॉर्चुनिटी है वो दूसरे प्रोफेशन की तुलना में काफी हद तक बहुत अच्छी है। और जो भारत सरकार, जो हमारी इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये आने वाले 5 साल यानी कि 2030 में मैं समझता हूं, जो अभी हम वैल्यू वाइज जो कहते हैं हम 13 और 11th रैंक कहते हैं, और जो वॉल्यूम वाइज हम 3rd रैंक कहते हैं इंडिया के अंदर, इसको हम फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचने वाले हैं। यानी कि कहा जाता है हर तीसरी गोली पर इंडिया, भारत का नाम होता है। अभी हम कुछ चीजों में पीछे थे, और वो था हमारे इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस, जिस पर हम दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट थे, जिसमें से लगभग 17 ऐसे हमारे इंटरमीडिएट थे जो हमें सिर्फ और सिर्फ बाहर से मंगाने पड़ते थे। लेकिन इस कोविड-19 में सब कुछ सिखा दिया है, और भारत सरकार और हमारी इंडस्ट्री है जो एमएसएमई है, ये इतनी ताकत से काम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो लोकल हमारी स्ट्रेंथ है मटेरियल की, उसको हम पहचाने, और उसको पहचान करके विश्व स्तर पर आज की डेट में काम चल रहा है। वहीं स्किल विज्ञान में जो LSSDC है, वो भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, और छोटे छोटे कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सों के साथ साथ लोगों को स्किल्ड कर रहा है, ताकि हम डिग्री के साथ एड ऑन प्रोग्राम को लेकर के अपने भविष्य को उच्च कोटि का बना सकें। तो मैं समझता हूं कि काफी अपॉर्चुनिटी है, और बच्चे को कहीं ना कहीं ये विश्वास होना चाहिए कि उसके अंदर कैलिबर है, और वो एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ, अगर वो सेल्फ एंटरप्रेन्योर किसी कारण से नहीं बन पाता है, तो उसके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था लायक सर्विसेज सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है। एग्जैक्टली सर, आपने जो बिंदुओं पर प्रकाश डाला हुआ है, द पॉइंट्स यू हैव कवर्ड इज रियली गोइंग टू हेल्प द ऑडियंस, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने जो डी फार्मा एवं फार्मेसी के समस्त जुड़े हुए कोर्सों के संबंधों में जो आज जानकारी दी है, हमारे जो ऑडियंस है, फार्मा मित्र है, जो विद्यार्थी के तौर पे, कलीग के तौर पे इस सेशन को देखेंगे, सुनेंगे, और उनका फार्मेसी के क्षेत्र में आज एक नया ज्ञानवर्धन हुआ है। भविष्य में भी सर इस तरह के छोटे छोटे जो एक नए नए बिंदुओं को लेकर छोटे छोटे प्रोग्राम करने की योजना है, तो सर इसमें आपका टाइम अवश्य चाहिए होगा। सदैव आपके आभारी है सर कि आपने टाइम दिया और आज इस लेवल के ऊपर आपने जानकारी दी है, तो थैंक यू। वेलकम कोसे जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल। थैंक यू सो मच सर।